Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 13 of Statistics and Probability Theory course. In last class, we continued our discussion on probability. हमने random variables को discuss किया in detail कि what are random variables. For just a quick revision, random variables are again simple type of variables. बस उसमें फ़र्क ये है कि they can take any value जो कि randomness के criteria पे पूरा उतरती है. Then we said कि random variables जो हैं they can be discrete, they can be continuous. और उन्हीं की बेस पे we also defined or described probability distributions. We basically described the distributions जो कि discrete distributions थी. Discrete distribution में हमने क्या देखा था कि जो random variable है that is discrete और एक function f of x जो है that will be probability distribution function जिसका के ये उसमें चीज़ें ये एक्सियम्स वो फुलफिल करता होगा. दैट इज कि इट विल बी एफ ऑफ एक्स विल बी नॉन नेगेटिव यानी हमेशा या ज़ीरो होगा या इट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो. And the second thing was कि summation of f of x for all x was equal to 1 यानी सब probability distribution की values को अगर हम sum करें तो result जो है that should be equal to 1. So if some function that qualifies these values and there was another axiom जो कि ये कह रही थी कि probability of x is equal to x यानी किसी random variable की कोई एक value की probability जो है that is actually value of the function at that point. तो उस function f of x को हम discrete probability distribution function कहेंगे. We also discussed probability bar chart and probability histogram. Probability bar chart जो था that was about कि हम probability distribution functions को as bars represent करते हैं और histogram में we represent them as histogram. And both of these जो graphical views हैं they actually tell us कि कहाँ पे population ज़्यादा है. For example, if we have this type of histogram, तो it means कि ज़्यादातर population जो है random variable के exist करने की वो इस जगह पे ज़्यादा है in the middle. और साइड्स के ऊपर या एक्सट्रीम केसेस में इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है या इट कैन बी ऑफ दिस काइंड में बी कि शुरू में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसके बाद जूं रैंडम वेरिएबल बढ़ता जाता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है. इट कैन बी अदर वे अराउंड एज वेल बट दिस जनरली गिव्स अस ये जो बार चार्ट हैं या हिस्टोग्राम्स हैं प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम जो हैं ये हमें जनरली ट्रेंड बताते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन कि किस हिस्से में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होगी. एंड वी सॉल्व्ड द एग्जांपल्स कुछ जो कि हमने इसके ऊपर की थी. Today we will continue our discussion on probability distributions और continuous probability distribution की हम बात करेंगे आज. Continuous probability distribution
कैन नॉट बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म। इफ यू रिमेंबर, तो हमने बेसिकली जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थी उनको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते थे, क्योंकि डिस्क्रीट के बारे में हमने जब डिस्कशन की तो डिस्क्रीटनेस जो है दैट कम्स विद कि उसमें कितनी वैल्यूज आ रही हैं। दैट वाज समथिंग जो कि हम काउंटेबल था। हमने कल काउंटेबल का कॉन्सेप्ट भी इन द प्रीवियस क्लास डिस्कस किया था कि anything, any set will be regarded as countable if it has one-to-one correspondence with set of natural numbers. तो काउंटेबली फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो जब हम काउंट कर सकते हैं तो उन चीज़ों को हम टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इफ समथिंग इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जो होगी वो नॉन काउंटेबल होगी, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज बिटवीन any arbitrarily taken 2 points. So we cannot count them. Therefore, we cannot make a table. So continuous probability distributions cannot be written in tabular form, but it can be stated as a formula. जैसे कि हम continuous functions को generally describe करते हैं as mathematical relationship, जैसे कि एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 में भी ये कोई पैराबोलिक शेप में कोई कर्व होगी, और हमारे पास कोई इस किस्म की रिलेशनशिप हो सकती है विच इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल। तो इन बेसिकली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस वी एक्चुअली रिप्रेजेंट देम in terms of some formula. Such a formula would necessarily be a function of the numerical values of continuous random variable x. Obviously, एक continuous random variable हम define करते हैं x, और इसके ऊपर यानी इसका कोई function होगा, एक continuous function होगा जो कि continuous probability distribution को represent करेगा। And as such will be represented by functional notation f of x. हम इसको f of x से denote करते हैं, and the function f of x usually is called probability density function or density function of x. And let's see कि continuous probability distribution function की क्या properties होती हैं या क्या exigencies हैं, या किसी भी function f of x को कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस का मीट होना जरूरी है। सो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइंड ओवर अ सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ नंबर 1 तो वही चीज है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज पॉजिटिव rather non-negative, क्योंकि जीरो वैल्यू भी हो सकती है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेकेंडली, you remember for discrete case we had this situation. Same thing is defined for continuous case कि in continuous case जो summation sign है that degenerates to or that is represented by integral sign in case of continuous variables. ये जहाँ पे आपने इन कैलकुलस इंटीग्रेशन सीखी होगी या डेफिनेट इंटीग्रल्स सीखे होंगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ बताई गई होगी कि जो सम है दैट इज समेशन इज बेसिकली जनरेटेड into integral sign when these intervals become very small, यानी dx जो है वो बहुत छोटा हो जाता है और उसको हम समेशन साइन को इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यूज का सम जो था वो 1 था। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसको अगर हम इंटीग्रेट करें ओवर होल इंटीग्रल यानी -∞ से +∞ तक,
ओवर होल इंटरवल, तो जिसका सम जो है दैट शुड बी 1 अगेन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इट इज नेसेसरी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ होल सैंपल स्पेस, बेसिकली दिस वे होल सैंपल स्पेस विल बी कवर्ड, यानी जनरली स्पीकिंग आवर होल सैंपल स्पेस जो है दैट विल बी इक्वल टू -infinity to +infinity। दिस वुड बी समथिंग जो कि इसका होल इंटरवल है। अगर हम इसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं, हमारा जो आंसर है दैट शुड बी 1। और इसको अगर हम थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलें तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो एरिया अंडर द कर्व, दिस एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी इक्वल टू 1। यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंडर जो एरिया है दैट शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि जो इंटीग्रल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली एरिया अंडर द कर्व। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो भी जितना भी एरिया कवर करती है दैट शुड बी इक्वल टू 1। एंड द थर्ड थिंग सेज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ random variable x lying between a and b is equal to integral from a to b f of x dx। अब यहां पे हम डिस्क्रीट से थोड़ा सा, पहली दो कंडीशंस तो डिस्क्रीट की सेम थी, डिस्क्रीट की और कंटिन्यूस की। सिमिलैरिटी क्या थी कि दोनों केसेस में f of x शुड बी नॉन नेगेटिव एंड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज या सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यूज के दैट शुड बी इक्वल टू 1। डिस्क्रीट में हम उसको समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, कंटिन्यूस में हम उसको इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हमें किसी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो इन कंटिन्यूस वैल्यूज नॉर्मली हम एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करते। एक्चुअली देयर इज नो नथिंग दैट स्टॉप्स अस कि हम किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट इफ वी सी कि किसी भी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस कर्व और हम इस पॉइंट के ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी, लेट्स से दिस इज x इज इक्वल टू a, यहां पे फाइंड करना चाहते हैं। अगर ये एक पॉइंट है तो व्हाट विल बी द एरिया अंडर दिस पॉइंट। पॉइंट की अपनी कोई डायमेंशंस नहीं है, ठीक है, पॉइंट की कोई लेंथ नहीं है, कोई विड्थ नहीं है, तो हाउ इट कैन हैव सम एरिया underneath it। So it has zero area underneath a point and we have one whole area, जो इसका जो है वो 1 है, तो आंसर विल बी 0। यानी किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट की हम अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें वो 0 मिलेगी बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सो इसलिए हम करते ये हैं कि वी टेक अ रीजन कि बिटवीन वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग बिटवीन ए एंड बी। तो यानी इस केस में वी नॉर्मली डू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स lying between a and b is equal to integral from a to b f of x dx। यानी अब हम इस फंक्शन को इन दो पॉइंट्स के दरमियान इंटीग्रेट करके वी विल फाइंड द वैल्यू कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x lying between these 2 points। So this here we have some difference
in case of discrete and in case of continuous probability. In discrete के केस में we can actually find out the probability of any point. यानी discrete का केस अगर होगा तो we will have this type of function. Maybe this is A, B, C, D, E and F are these are the values. जो कि तो हम किसी जो कि x के ऊपर और this is f of x. तो हमें अगर probability of x is equal to c कैलकुलेट करनी है तो whatever is the value, maybe it's 0.2, तो f of c जो होगी that will be equal to 0.2. सिमिलरली किसी भी पॉइंट पे ए सी ई पे द वैल्यूज शुड बी वी शुड बी एबल टू फाइंड द वैल्यूज. बट इफ वी हैव दिस फंक्शन जो कि इसी तरह का है, उसका ट्रेंड यही है बट इट इज कंटिन्यूअस और इट मे बी समथिंग लाइक अगर हम उसके साथ जरा ज्यादा मैच करना चाहें तो इट इज लाइक दिस. यहां पे x है, यहां पे f of x है. तो f of x अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो बिटवीन दिस a एंड f पॉइंट्स ये एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड वी कैन नॉट फाइंड दिस b c and d and then E and F. एक वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकेंगे बट वी कैन फाइंड कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में होने की प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल बिटवीन C एंड D, तो हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ x lying between C and D will be equal to probability of C and D f of x dx. यानी इस तरह से हम probabilities जो हैं वो उनको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो I hope this difference is very clear to you people now कि हमारे पास अगर डिस्क्रीट हैं तो हम किसी भी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर कंटिन्यूअस है तो हम किसी पॉइंट के बजाय हम किसी रीजन में रैंडम वेरिएबल के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन नॉट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वेरिएबल टू बी एट वन पॉइंट, क्योंकि जब भी हम उसे कैलकुलेट करेंगे विद मैथमेटिक्स हम उसको हमेशा जीरो ही कह सकेंगे. तो लेट्स see an example. Suppose that the error in reaction temperature in degree C for a controlled laboratory experiment is a continuous random variable x having a probability density function. Verify f of x is a probability density function and find the probability of x lying between 0 and 1. अब जब हमने ये वेरीफाई करना है कि f of x जो है दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो दिस इज बेसिकली elsewhere it's 0 and for 1 lying between -1 and 2 is x square divided by 3. तो हमें एक तो चीज ये देखनी है कि f of x should be greater or equal to 0. elsewhere का केस तो क्लियर है. for x square divided by 3, because of this squared value, ये जो टर्म है दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. यानी अगर ये -1 भी हम पुट करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो भी हमारे पास यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी 1/3. और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ऑब्वियसली इट हैज टू बी
पॉजिटिव 1/3. सो दिस फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव. ये एक्सियम तो ट्रू हो गया. अब सेकंड थिंग जो हमने इसकी देखनी है दैट इज कि फॉर दिस इंटरवल this should be equal to 1. अब हम इसको यूं देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे. अब ये जो इंटरवल हमें गिवन है, यानी इसको अब हम 3 डिफरेंट पोर्शंस में देखेंगे. यानी हमारे पास जो अगर ये कंटिन्यूस लाइन है, यहां पे हमारे पास 0 है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड हियर वी आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी. यहां पे -1 है, 2 और 1 और 2 यहां पे है. दिस फंक्शन जो है इट इज इन दिस रीजन इट इज 0 एंड इन दिस रीजन इट इज आल्सो 0. जबकि जिसकी जो वैल्यू है दैट इज एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 इन दिस रीजन. यानी इस रीजन में सिर्फ ये फंक्शन जो है दैट हैज अ नॉन जीरो वैल्यू, बाकी जगहों पे ये वैल्यू 0 है. तो इसको हम इन्हीं इंटरवल्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं. ये हमें कैलकुलस से इन चीज़ों का पता है कि हम ये कर सकते हैं. -1 से 2 तक एफ ऑफ एक्स की बजाय आई एम राइटिंग डायरेक्टली द वैल्यू जो कि इस रीजन में है, dx प्लस फ्रॉम 2 to infinity f of x is equal to 0. Now f of x is 0, तो डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए कांस्टेंट जो है दैट विल बी 0. ये भी 0 हो जाएगा. वी विल बी लेफ्ट विद ओनली दिस पार्ट जो कि होगा x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. यानी 1/3 ऑलरेडी था और एक 3 हमारे पास और होगा. हम इसे इवेल्युएट करेंगे -1 से 2 तक. तो दिस विल बी इक्वल टू एक्चुअली एक्स क्यूब जो है 2 का क्यूब जो होगा दैट विल बी 8 डिवाइडेड बाई 9 और -1 का क्यूब जो होगा बेसिकली यहाँ पे माइनस होता है और -1 का क्यूब -1 ही होगा, -1/9. So this will be equal to 8/9 plus 1/9 which is equal to 1. So we can say कि जो f of x है that is a probability density function या probability distribution function. अब दूसरी चीज इसमें से हमने जो कैलकुलेट करनी है दैट इज probability of x lying between 0 and 1. अगेन अगर हम इंटरवल्स देखें तो हम अब सिर्फ इस इंटरवल के भी सब इंटरवल में हैं, तो हमें सिर्फ यही वैल्यू यूज करना पड़ेगी. इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग आई विल जस्ट इंटीग्रेट f of x dx on the interval from 0 to 1, which will be equal to from 0 to 1 के दरमियान वैल्यू इसकी जो है वो x square divided by 3 है, dx which will be equal to x cube divided by 9 evaluated from 0 to 1, which will be equal to 1 divided by 9. यानी
probability of x lying between 0 and 1 will be 1/9, जो कि हम उसके थर्ड एक्सियम से देखते हैं। सो यानी अगर हमने किसी फंक्शन को देखना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को क्वालिफाई करता है या नहीं करता, तो हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि पहले हम उसको देखें कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं दैट शुड बी नॉन नेगेटिव। एंड द सेकंड थिंग, जब हम उसका सम लें या इंटीग्रेट करें उसको ओवर द होल इंटीग्रल, इट शुड यील्ड अ 1, यानी एरिया अंडर दैट कर्व जो कि दैट इज बीइंग स्पेसिफाइड बाय दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज 1। लेट्स सी अनदर एग्जांपल कि f of x जो है दैट इज इक्वल टू 0.75 into 1 minus x square for x lying between -1 and 1 and 0 elsewhere. We have to find the probability of this distribution that this lies between these 2 points, and the second thing कि अगर probability ये है तो हमने x find करना है in this case, and we have to find the probability of lying x in this interval as well. So simply we can see कि ये वैल्यूज जो हैं, अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ये वाली, this is with negative sign, that will be equal to integral from 0.5 to 0.5 f of x, which is equal to 0.75 into 1 minus x square dx, क्योंकि ये जो इंटरवल है दैट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं लाइक दिस कि दिस विल बी इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 1, इट मीन्स इसका इंटीग्रल 1 होगा, माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और दिस इज इवेल्युएटेड फ्रॉम -1/2 टू 1/2, या 0.5 आप यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑब्वियसली use these values और इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Just plug in the values and you can find the answer. For the second case, probability of x being in these 2 points will be equal to, अब इंटीग्रल फ्रॉम 1/4 से 1 तक देयर विल बी अ सेपरेट इशू, जैसे कि मतलब ये फंक्शन जो है ना, अगर हम इसको अगेन -∞ से +∞ के बारे में बात करें, दिस इज 0, तो ये फंक्शन सिर्फ इस हिस्से में डिफाइंड है। हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो f of x की वैल्यू यहाँ पे नॉन ज़ीरो है और बाकी हिस्से में इट्स नॉन ज़ीरो, इट्स 0। सो हम इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेंगे, इट्स 1/4 to 1, और 1/4 से 1 तक हम इसी चीज़ को दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx प्लस 1 to 2 f of x dx which is actually equal to 0। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ
इस हिस्से में इसको देखना है। तो यू कैन यूज द सेम थिंग, बस ये लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, बस ये थोड़ा सा एक लॉजिकल प्रॉब्लम है इसमें जो कि हमने शामिल करना है। फॉर द थर्ड पार्ट, जो कि ये कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग लेस देन एक्स इज इक्वल टू 0.95 फाइंड एक्स, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो दैट इज बेसिकली इक्वल टू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन this is capital X is less than X will be equal to from minus infinity to X f of X। यहाँ पे हम डमी वेरिएबल यूज कर सकते हैं f of t dt so that these two are do not get confused। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक तो वैल्यू 0 हैं, इसका मतलब है कि हम इसको -1 से x तक इंटीग्रेट करेंगे और f of t की बजाय वी विल यूज दैट फंक्शन 0.75 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। तो ऑब्वियसली इंटीग्रल तो हमारा यही रहेगा विच इज 0.75 into x minus x cube divided by 3, and that will be equal to this 0.95। Now if we solve this equation, तो हम x को calculate कर सकते हैं by solving merely this equation। हम इसको numerically solve करें या it is solved analytically, that is not a question at this point, but this is the way we can tackle problems जो कि इस तरह से साबित हो सकती हैं। Now we define the new concept, यानी हम उस concept से थोड़ा सा further आगे मूव करते हैं कि cumulative distribution function for continuous variables किस तरह से हम define करते हैं। In the last class, we did define cumulative distribution for discrete variables, discrete random variables। इसमें भी concept वही है, only the difference is कि function जो है that is continuous instead of being discrete। यानी जहां जहां पे हमने इंटीग्रेशन की थी, जहां जहां पे हमने एडिशन की थी, समेशंस लिए थे, वहां पे वी विल हैव इंटीग्रेशंस। सो द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f of x of a continuous random variable x with density function f of x is defined as f of x is equal to probability of x लेस देन स्मॉल x, यानी x जो है ये वेरिएबल है और जो स्मॉल x है दैट इज टेलिंग सम वैल्यू, सर्टेन वैल्यू, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू x f of t dt फॉर x lying between माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यानी उसी तरह से हमने जैसे हमने डिस्क्रीट के लिए किया था कि f ऑफ x जो था दैट वाज एक्चुअली इक्वल टू बिफोर राइटिंग समेशन, जो f ऑफ x था दैट वाज एक्चुअली इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन x। यानी हमारे पास सारे फंक्शंस को सम करना है हमने और x जो है दैट इज लेस देन x, यानी उससे जो पिछली वैल्यूज हैं हमने
इनको टेबुलेट करके लास्ट क्लास में एग्जांपल्स देखी थी कि उनसे पिछली वैल्यूज को हम ऐड करके लिखते जाते हैं एंड दैट गिव्स अस समहाउ द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका जो एंड रिजल्ट है दैट हैज टू बी 1 ऑल द टाइम, यानी हमें उसको 1 यानी जो जब हम सारी चीज़ों को सम कर लें, ऑब्वियसली सारी पिछली वैल्यूज को सम कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हैज टू बी 1 विच इज बेसिकली समथिंग दैट कम्स आउट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी और डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एज वेल। So this definition also leads us to two conclusions, that probability of x lying between A and B should be given by the values of cumulative distribution function at those points and taking their difference. So this will be very helpful in some situations, although कि हमने पिछली एग्जाम्पल में इसका थोड़ा सा इस्तेमाल भी किया। एंड द सेकेंड थिंग कि अगर हमने कहीं पे भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वी विल हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि इस डेफिनेशन से भी हमें पता चलता है, क्योंकि डेफिनेशन क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दे आर कंप्लीमेंट्री ऑपरेटर्स। अगर हम किसी चीज़ की इंटीग्रेट करके हमें कोई चीज़ मिलती है तो उसको डिफरेंशिएट करके हमें वो चीज़ वापस मिल सकती है। तो यहाँ चूंकि हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स को तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन ज़रूरी है कि प्रोवाइडेड द डेरिवेटिव exists, यानी इसकी एग्जिस्टेंस जरूरी है, क्योंकि डेरिवेटिव मे नॉट एग्जिस्ट एट सर्टेन पॉइंट्स। जैसा कि आपको पता है, आपने कैलकुलस में ये चीज़ें सीखी होंगी काफ़ी सारी, कि वन ऑफ द एग्जांपल्स इज जंप डिसकंटिन्यूटी और डबल पॉइंट्स। यानी जैसे अगर ये है सिचुएशन हमारे पास, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस but the derivative does not exist at this point. Or if we have this type of situation, यानी triangle जैसे बनती है तो इस peak के ऊपर we have double point, the function is continuous but it does not have derivative at this point. तो अगर हमारी distributions में इस तरह की values होंगी तो obviously इन points के ऊपर we will not be able to find the derivative by just taking by differentiation and find the value. इसके लिए हमें दूसरी टेक्निक्स यूज करना पड़ेंगी। Let's solve an example to find cumulative distribution function. अगर हमने if we have to find cumulative distribution function for the function that we defined in the previous example, तो एफ ऑफ एक्स जो था दैट वाज इक्वल टू बेसिकली एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 फॉर एक्स लाइंग बिटवीन -1 and 2 and it was 0 otherwise. Elsewhere. तो cumulative distribution function जो है that is basically found by this relationship, यानी हम इसको यूं करेंगे कि f of x जो कैपिटल f of x है that will be equal to integral of f of x from -infinity to +infinity f of x dx, which will be equal to -infinity to 0, rather -1 x f of x dx
plus integral from -1 to 2 f of x dx plus 2 to infinity f of x dx. तो these values are 0. इनको हम इवेल्युएट कर चुके हैं लास्ट एग्जाम्पल में. दिस विल गिव अस अ 1 विच शुड बी एक्चुअली सम ऑफ द वैल्यूज. लेकिन अगर हमने इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखना है तो एफ ऑफ एक्स को हम फिर यूं लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू, यानी 2 की बजाय हम इसको x कह देंगे और f of t dt will be the variable. और इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो that will be equal to basically t cube divided by 9 evaluated from -1 to x. So this will be equal to x cube divided by 9 minus, rather plus 1 by 9, which will be equal to x cube plus 1 divided by 9. यानी इसका जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है दैट विल बी गिवन बाय दिस. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इफ वी प्लग इन x इज इक्वल टू 2 तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी. तो बाकी चूंकि आउटसाइड दीज इंटरवल ये वैल्यूज 0 हैं तो इनका सम जो है दैट विल रिमेन एट 1. तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है दैट कैन बी फाउंड बाय दिस मेथड. इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम प्लॉट करके देखें तो you can see कि this is -1 and this value is 2, और after 2 this value is getting to 1, और अब जहाँ पे भी हम चले जाएंगे it will remain at 1. यानी ये बेसिकली हम एरिया अंडर द कर्व प्लॉट कर रहे हैं which was there actually. यानी एफ ऑफ एक्स को अगर हम प्लॉट करते, एफ ऑफ एक्स वॉज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो दिस विल बी समथिंग लाइक अ पैराबोला. कुछ पैराबोलिक टाइप शेप होगी इसकी, और since it is defined between -1 and 2 तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा. इट इज़ नॉन सिमेट्रिक टाइप के, यहाँ से इट्स स्मॉल और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट एरिया अंडर दिस विल बी, जब हम उसको सम करेंगे तो दैट विल बी एट दिस पॉइंट इट विल बिकम 1, और उसके बाद फिर चाहे हम जितने मर्जी पॉइंट्स ऐड करते जाएं एरिया विल रिमेन एट 1. लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम. द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी पुट्स प्रोजेक्ट्स आउट ऑन बिड and generally estimates that reasonable bid should be called estimate B. Department of Energy has determined that density function of winning bid is f of y is equal to 5 by 8b for y lying between this interval -2b by 5 से 2b तक. फाइंड f of y, यानी इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने फाइंड करना है, एंड यूज इट टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट विनिंग बिड इज लेस देन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज प्रिलिमिनरी एस्टिमेट
b. तो इसके लिए अगेन if we have to find this f of y, यानी बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता है कि b is the probability of winning a project. अब हमने ये देखना है कि जो हमारा एस्टीमेट है उससे कम बिड्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है. तो इसके लिए बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि सबसे पहले हम इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करते हैं, क्योंकि दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है दैट विल बी गिवन बाय एफ ऑफ वाई, दैट विल बी गिवन बाय 2b by 5 y to basically this is not negative, this is some mistyping, so this is not negative, this is 5 by 8b इंटू डमी वेरिएबल हम t इंट्रोड्यूस करते हैं. इसमें भी अगेन चूंकि एल्सवेयर इट इज 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 2b by 5 तक इट विल बी 0, एंड आफ्टर y इट विल आल्सो बी 0, या आफ्टर दिस 2b वैल्यू इट विल बी 0. सो वी हैव टू इंटीग्रेट ओनली बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. सो दिस विल बी इक्वल टू 5 by 8b into y integrated at 2b by 5 and y basically. I miswrote y over here. So जब इसको हम evaluate करेंगे तो that will be 5 by 8b into y minus 2 by 5. अब यू कैन सी कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा जो आंसर है दैट टर्न्स आउट टू बी 5y डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1 by 4. सो जो cumulative distribution function है f of y, that will be equal to 0 for y less than 2b divided by 5. This will be equal to this value जो कि हमने अभी कैलकुलेट की 5y by 8 minus 1 by 4. For this interval 2b by 5 is less than y is less than 2b and it should be 1 basically for y greater than 2b. Basically cumulative distribution function को हमेशा sum to 1 हो जाना चाहिए. तो लेट्स सी के अगर हम 2b की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करते हैं तो डज इट गेट दैट वे और नॉट. तो इफ वी प्लग इन y इज इक्वल टू 2b, तो हमारी जो वैल्यू होगी 5 इंटू 2b, यहाँ पे हमने b मिस किया है, divided by 8b minus 1 by 4, which will be equal to 10 by 8 minus 1 by 4, which is equal to 5 by 4 minus 1 by 4, which is equal to 1.
सो वी बेसिकली कैन से कि दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है दैट हैज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 which should be so that is verified as well. Now we have to see कि जो probability of their determined probability से less होने की क्या possibility, यानी B से कम होने की क्या probabilities हैं. तो for that we know कि probability of y is less or equal to b will be equal to f of b as a matter of fact in this case, which will be equal to y की बजाय हम अगर b प्लग इन कर देते हैं इस वैल्यू में, that will be 5/8 minus 1/4. This will be equal to 3/8. So this way we can use cumulative distributions to evaluate probabilities, or we can find the cumulative distributions as well. Now let's introduce a new concept जो कि giant probability distribution function कहलाता है. The function f of xy is a giant probability distribution or probability mass function of discrete random variables x and y if वही conditions हैं. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि this function is function of two variables. You might have studied multivariable calculus या कैलकुलस इन टू वेरिएबल्स यानी एक्स और वाई की, तो वही चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे इट्स इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़. तो प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर आवर स्कोप इज़ वेरी स्मॉल, वेरी लिमिटेड. तो इन केस ऑफ डिस्क्रीट जायंट प्रोबेबिलिटी जो एफ ऑफ एक्स वाई है दैट विल बी अ नॉन नेगेटिव वैल्यू. प्रोबेबिलिटीज़ नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो चाहे वो जायंट प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो क्यूमुलेटिव है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यूज को सम कर रहे हैं. तो देयर इज नो चांस कि हम कोई नेगेटिव आंसर हमें इन केसेस में मिल सके. एंड देन कि समेशन ओवर एक्स एंड वाई of f of x y should be equal to 1. Previously हमने ये कहा था कि f of x का समेशन जो है that should be 1. अब जो फंक्शन है that is function of x as well as y, अब दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो in that case हमें टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन जो है चाहे वो 2 की बजाय 10 वेरिएबल्स का हो, जो प्रोबेबिलिटी टोटल होगी दैट विल बी, यानी होल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट शुड बी 1. तो दिस इज बेसिकली दिस पार्ट कवर्स होल सैंपल स्पेस, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलवेज 1. एंड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स बीइंग इक्वल टू स्मॉल एक्स एंड कैपिटल वाई बीइंग इक्वल टू स्मॉल वाई is equal to f of x y. यानी उसी तरह से जैसे हम डिस्क्रीट के केस में we found the value of that function at that point, we will do the same thing in case of giant probabilities as well. And this is true for any region A in xy plane, that is P of xy belonging to A, यानी कोई भी एरिया आप उस यानी 2D सरफेस बन जाएगी ना फिर, यानी अगर ये x है और ये y है तो इसके अंदर हम कहते हैं कि इट इज सर्टेन एरिया A. इस A के अंदर अगर हमारा जो x और y हैं दे आर सच दैट दे बिलोंग टू दिस A, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी पॉइंट x एंड y की दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू जो कि हम पहले एफ ऑफ एक्स वाई से कैलकुलेट करते थे, एफ ऑफ एक्स से कैलकुलेट करते थे. इन दिस केस
वी विल कैलकुलेट इट बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज जो हैं वो ज्यादा वैल्यूज हम ले रहे हैं, ये रीजन की वैल्यूज हैं। दिस इज नॉट अबाउट 1 पॉइंट की वैल्यू उसी तरह से एफ ऑफ एक्स वाई से ही कैलकुलेट होगी। अगर हमारे पास रीजन होगा तो उसकी वैल्यूज ऑब्वियसली वी विल हैव टू ऐड ऑल द प्रोबेबिलिटीज। इसमें देयर इज नथिंग न्यू इन जॉइंट प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो अब एक नहीं है, हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो दो रैंडम वेरिएबल्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहेंगे। उसका जो फंक्शन होगा वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी सेम थिंग्स जो हैं दैट शुड क्वालिफाई के जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है इट शुड बी नॉन नेगेटिव। Summation of all probabilities should be equal to 1 and probability of any point xy should be equal to f of xy and lastly अगर हम किसी रीजन की probability देखना चाहें तो वो summation of all those points की probabilities होगी जो कि उस रीजन के अंदर लाई करते हैं। तो let's solve एन एग्जाम्पल जो कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा मजीद हमें वाज़े करेगी या हमारे लिए समझना आसान करेगी। 2 ballpoint pens are selected at random from a box that contains 3 blue pens. We have 3 blue pens, 2 red pens and 3 green pens. If x is the number of blue pens, यानी x जो है वो हम उससे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y is representing red pens that are selected, find the joint probability f of x y and यानी एक प्रॉब्लम तो ये है हमने एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड करनी है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो हमारी ये है कि वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए such that A is the region defined by x plus y is equal to 1। अब जाहिर है इस तरह के प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पहले से ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या है कि जो x है वो 3 ब्लू पेन्स में से कोई केस हो सकता है और y जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग रेड पेन्स। ग्रीन को हम अभी डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो हम ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 2 वेरिएबल्स पे देखेंगे, 3 वेरिएबल्स पे नहीं देख रहे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास टोटल पेन्स कितने हैं। टोटल आर 8 एंड वी हैव टू पिक 2 ऑफ देम। तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो होंगी that will be equal to 8 combinations of 2 which is equal to 28। अगर आप इसको NCR से evaluate करेंगे तो you will get this value। Now we see कि 2 पेन्स हमने सिलेक्ट किए, इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हम कहते हैं कि वी हैव नॉट चोजन एनी फ्रॉम एक्स और वाई, यानी कोई भी ब्लू पेन भी चूज नहीं किया, रेड पेन भी चूज नहीं किया, यानी दोनों ही हमने जो चूज किए वो ग्रीन थे। देयर इज ए पॉसिबिलिटी
कि x जो है वो ग्रीन है, ठीक है ना, यानी एक हमने एक ग्रीन पिक किया और एक ब्लू पिक किया, एंड देन वी हैव अ पॉसिबिलिटी कि वी पिक्ड अ रेड एंड ग्रीन, ब्लू पिक नहीं किया, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमने एक रेड और एक ब्लू पिक किया. अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी पिक्ड 2 रेड पेन्स और ब्लू जो था वो ऑब्वियसली विल नॉट बी देयर. सिमिलरली वी पिक्ड both blue pens, both red pens basically. तो these are the possibilities कि हम red और blue की possibilities इस केस में देख सकते हैं. यानी ये हमारी सैंपल स्पेस होगी कि हमारे पास 8 पेन्स हैं, उसमें से 3 रेड हैं, इसमें से 2 रेड्स हैं, 3 ब्लू हैं, 3 ही ग्रीन हैं. हमने रेड और ब्लू की पॉसिबिलिटीज देखनी है. ग्रीन को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट विल मेक दिस प्रॉब्लम अ बिट लॉन्गर. तो लेट्स से कि एफ ऑफ 0 क्या होगी. अब 0 पिक करने की क्या पॉसिबिलिटी है कि हमने जो 3 ब्लू पेन्स थे उनमें से 2 हमने चूज कर लिए, विच इज इक्वल टू 3. तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम कैलकुलेट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ F00 जो है that is equal to 3/28 then. Similarly, if we calculate the probability of let's say 0 and 1. 0 and 1 का क्या मतलब है कि we have picked 1 blue pen, rather 1 red pen and 1 green pen. तो उस केस में we will have 3/1 multiplied by 3/1, यानी 3 ग्रीन में से एक हमने पिक कर लिया और 3 ब्लू में से एक पिक कर लिया. तो विच इज 3 into 3 इट इज 9. तो इसकी पॉसिबिलिटी जो होगी दैट विल बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 F0 and 1 will be equal to 9/28. Similarly, we can make the possibilities for everything. For example, if we have this F11, तो F11 के केस में क्या होगा, हमने 1 जो है वो यानी 3/1 और 2/1 की पॉसिबिलिटी ली है. तो दिस विल बी इक्वल टू 6 बेसिकली. तो 1/1 की प्रोबेबिलिटी होगी 6/28. So we can basically make a table now. जैसा कि हमने डिस्क्रीट ऑफ 1 वेरिएबल के लिए टेबल बनाया था, वैसा ही सेकंड के लिए हम एक टेबल 2 वेरिएबल्स के लिए एक टेबल बना सकते हैं. We can have f of x y. We have y here which has values 0, 1 and 2. Then we have x over here और इसकी वैल्यूज भी 0, 1 और 2 हैं. 0 के लिए हमने 3/28 वैल्यू कैलकुलेट की थी. फॉर 0, 1 we
can calculate, it will be 9 by 28, ये भी 3 by 28 होगी probability. इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज़ 3 by 14, ये भी 3 by 14 है, एंड देन 0, और यहाँ पे वी कैन हैव दिस 1 by 28 possibility 0 0. By using your knowledge you can basically fill this table, जैसा कि मैंने couple of points के लिए किया. अब अगर हम लेफ्ट टू राइट एडिशंस करें तो वी गेट 15 by 28 ओवर हियर. 9 plus 6 जो है वो 15 by 28 है. यहाँ पे वी हैव 6 by 14, और वी कैन से इट 3 by 7 भी इसे कह सकते हैं. एंड हियर वी हैव 1 by 28. और अगर हम इनको कॉलम्स को ऐड करें तो दिस विल बी इक्वल टू 5 by 14. हियर वी विल हैव 15 by 28, और यहाँ पे 3 by 28 होगा. इफ यू सम इट आइदर वे यू विल गेट अ 1. सो दिस इज द वे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन cumulative probability distribution function of two variables calculate कर सकते हैं. Obviously अगर हम इसको 3 के लिए करें तो हमें एक क्यूब की जरूरत पड़ेगी, जो कि it will go on cube, और values जो होंगी they will be very cumbersome to calculate every point, every value. But there is no restriction के सिर्फ 2 variables का joint probability distribution हो सकता है. It can be of 3 variables as well. And in basically second part, we had basically the problem was that we have to find the probability distribution of x, y such that जो x plus y है that is less or equal to 1. यानी x y यूं थे कि इनका जो सम है दैट इज लेस देन 1. तो उसमें वी कैन वेरी वेल फाइंड आउट कि ये प्रोबेबिलिटी जो है दैट कैन बी फाउंड बाय दिस एफ ऑफ 0 0, क्योंकि ये सम 0 होगा, एफ ऑफ 0 1 एंड f of 1 0. उसके बाद अगर 1 1 या 2 0 करेंगे तो दैट विल बी आउट ऑफ दिस रीजन. तो इन वैल्यूज के सम के ऊपर हम वी विल बी एबल टू फाइंड दिस वैल्यू विच विल बी इक्वल टू 0 0 was 3 by 28, 0 1 was 0 1 यानी 0 और ये 1, दिस was 3 by 14, and 1 0 was x should be 1 and this should be y should be 0, that was 9 by 28. और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो यू विल गेट 9 by 14. So this is the joint probability of xy such that x and y lie in this region, which is defined by this equation. So today essentially we basically started with continuous distributions. Continuous distributions were similar to discrete. बस हमने उसमें ये कहा कि जहाँ पे समेशंस थे वहाँ पे हम इंटीग्रेशंस करेंगे. एंड द डिफरेंस वाज कि डिस्क्रीट के लिए हम किसी एक पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड फॉर कंटिन्यूस वी कांट डू दैट, हमें रीजन के लिए कैलकुलेट करते हैं. एंड देन वी डिफाइंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऑफ 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई, तो उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी शुड आल्सो क्वालिफाई द सेम क्राइटेरिया, बस समेशंस जो हैं वो डबल हो जाएंगे ऑन एक्स एंड वाई, यानी हम एक्स के लिए भी सम करेंगे, वाई के लिए भी सम करेंगे.
और उनकी जो उसका जो समेशन है उसकी जो वैल्यूज़ हैं दे शुड बी पॉजिटिव, समेशन शुड बी 1 एंड फॉर 2 डायमेंशनल या जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम रीजन्स के ऊपर भी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं. बाय द वे फॉर 1 वेरिएबल उसमें भी हम रीजन्स की प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर सकते हैं बाय टेकिंग सम. आई होप यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स बाय नाउ कि उसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. So that's all for today. We'll see you in the next class with the next topics जो कि हम continuous joint probability distributions की बात करेंगे and so on and so forth. So it's Allah Hafiz and good night.